غیر ملکی سفیروں کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتوں پر تنقید کرنے والے عمران خان کی خود برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر سے ملاقات ہوئی۔ ماضی میں غیر ملکی سفیر اپوزیشن کے ارکان اسمبلی اور رہنماؤں سے ملا کرتے تھے تو عمران خان ان پر تنقید کیا کرتے تھے، اور عمران خان ان ملاقاتوں میں سازشیں ہونے کا شبہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ آج برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کی غیر قانونی ترسیل ترقی پذیر ممالک کا بڑا مسئلہ ہے۔ مزید کہا سرمایہ کی یہ غیر قانونی ترسیل غریب ممالک کے باشندوں میں ہجرت کے رجحان کو ابھارتی ہے۔ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کے مؤثر انسداد کے لیے حکومتیں اقدامات کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں ملک میں بارشوں کی اور اس سے ہونے والی تباہی کی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بارشوں سے نالے بھر گئے۔ کورنگ نالے میں بہاؤ تیز ہونے سے کوڑا چننے والے 4 بچے پھنس گئے۔ ریسکیو آپریشن کر کے 4 کو بچا لیا گیا۔ بچوں کی مدد کے لیے چھلانگ لگانے والا شہری پانی میں بہہ گیا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈھوک نرالا کا شہری پانی کے تیز بہاؤ میں ڈوب کر لاپتہ ہو گیا ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس، نیوی اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمز کا کورنگ نالہ اور اطراف میں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں نوشین یوسف سے۔ جی نوشین۔ آج اسلام آباد کے نالہ کورنگ میں جب طوفانی آئی تو وہاں 4 بچے پھنس گئے تھے۔ بچوں کو تو ریسکیو کر لیا گیا، لیکن ایک شخص جو ان بچوں کو بچانے کے لیے اس نے نالہ کورنگ میں ڈائیو لگائی تھی، اس کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ اے سی اسلام آباد انیل سعید موجود ہے۔ انیل صاحب، آپ تفصیلات کے آگاہ کریں۔ پری مونسون سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ الرٹ پہلے سے ہمارے پاس تھا اور ہم نے یہاں پہ 144 کا نفاذ کیا ہوا ہے۔ پانی کا جب بہاؤ تیز ہوا تو ہمیں کال ہوئی، ہم لوگ فوری پہنچے، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ایک والنٹیئر وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروٹیکٹیو میجرز انہوں نے جمپ کیا۔ لیکن اب یہاں پہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے اور جھاڑیاں ہیں تو شاید یہیں پہ کہیں سٹک ہو گیا، اور اگر ڈپ ہو گئی ہے باڈی تو آگے راول ڈیم ہے، تو پھر وہ راول ڈیم میں چلے گئی ہے۔ انیل سعید یہ بتا رہے تھے کہ ان بچوں کو بچانے کے لیے ایک شخص نے، والنٹیئر نے پانی میں ڈائیو کی تھی اور وہ اس کے بعد سے لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے اس وقت ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے نالہ کورنگ میں۔ جی بہت شکریہ نوشین تفصیلات کے لیے۔ راولپنڈی کی آپ نے صورتحال جانی۔ کراچی میں کچھ حالات یوں کہ مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ گلشن اقبال، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، صدر نیو اور نیول کالونی، سادی ٹاؤن، دیگر علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ مناظر بھی آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش برس رہی ہے۔ کراچی میں بارش برس رہی ہے اور کل بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی تھی۔ اور علینا، میں جب بارش ہوئی کل کراچی میں تو میں شارع فیصل پر ہی تھا، تو اچھی خاصی بارش ہوئی تھی شارع فیصل پہ۔ اور ٹریفک کا نظام کیسا تھا زہیر؟ ٹریفک کا نظام چل رہا تھا، خرامہ ٹریفک چل رہی تھی، جیم نہیں ہوا، لیکن یہ کہ آج بھی صورتحال بارش کی ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کرتے ہیں کہ جو انتظامات ہیں، معمولات زندگی ہیں، وہ اس بارش کی وجہ سے متاثر بہت زیادہ نہ ہوئے ہوں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، بارش کہاں پر ہو رہی ہے اور ٹریفک کی صورتحال، دیگر چیزیں انیبا زمین شاہ ہمیں آگاہ کر رہی ہیں۔ جی انیبا۔ اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ہم اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہیں، یہاں پر بھی معتدل درجے کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ سب سے زیادہ حسین بارش ہوتی ہے، جس میں نہ تو بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے، نہ ہی بہت ہلکی بارش ہوتی ہے، بلکہ مانسون کے جو خوبصورت رنگ ہیں وہ اس بارش کے دوران نظر آتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے معتدل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نارتھ کراچی، ناظم آباد، گولی مارٹ، بلدیہ ٹاؤن سائٹ کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح سے ہم بہت زیادہ حبس محسوس کر رہے تھے، اس بارش کے بعد وہ حبس ختم ہوا ہے۔ بالائی سطح پر ہواؤں کی گردش ہے جو بحیرہ عرب میں موجود ہے، اور جو مانسون سسٹم ہے وہ بھی سندھ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ جبکہ ایک اور سسٹم جو خلیج بنگال میں بنا تھا وہ اس وقت وسطی بھارت میں موجود ہے، اس کے بھی زیر اثر بارشیں عید کے دنوں میں بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں ہوں گی۔ کراچی کی آپ سڑکیں دیکھیں، بہت ہی حسین لگ رہی ہے، بھیگی سی یہ سڑکیں ہیں۔ لوگ، مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا جلدی میں، کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کراچی میں بارش سے زیادہ جو شہری مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ بڑی اسٹریسفل ایک سچویشن ہوتی ہے، لیکن ابھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے بہت تیز بارشوں کی پیشن گوئی نہیں کی ہے۔ یہی کہا ہے کہ ہلکی سے معتدل بارش ہوگی، تو اس وقت ایسے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جس طرح سے ٹریفک جا رہا ہے اور جس طرح سے لوگ تیزی سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہی لگ رہا ہے کہ لوگ جلدی گھروں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی
बहुत शुक्रिया उनीबा तफसीलात के लिए। मुख्तलिफ इलाकों से आप देख रहे हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची की। और ज़ुहैब, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करने वाले होते हैं, मोटरसाइकिलों पर होते हैं, उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जब बादल बरस रहे होते हैं। और शारा फैसल पर कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में नजर आई जब बाइकर्स और बस मुसाफिर पुल्स के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बिल्कुल, इस पर रिपोर्ट करें अली इमरान सैयद। कराची में गो के इवनिंग से फोकास था रेन का, लेकिन अब ये हुआ है कि दोपहर से ही इस वक्त तकरीबन 2:30-3 के करीब से ही बारिश शुरू हो चुकी है। और ये जो सूरत हाल है, गर्मी की जो सूरत हाल थी अब से कुछ देर कबल, वो जो है गर्मी की सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है। खुशगवार हवा चल रही है। अगर हमारे कैमरामैन बैकग्राउंड में दिखाएं तो ये बड़ी तादाद में बाइकर्स इस पुल के दोनों जानिब, एक एयरपोर्ट जाने वाला पुल और दूसरी तरफ अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो एयरपोर्ट से सदर जाने वाला जो ट्रैक है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में बाइकर्स जमा हो गए हैं। जो शहर से रिहायशी इलाकों की तरफ जाने वाला रोड है उस पर ट्रैफिक बढ़ गया है। यकीनन लोग इस सूरत हाल में बचते हैं कि कहीं वो फंसे नहीं। मुख्तलिफ जगहों पर शहर के पानी के रेले ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा कल जो बारिश का सिलसिला था, जो पहले गडाफ से शुरू हुआ था और फिर शहर में काफ़ी देर बाद फैला था, वो अब उसके उलट हो गया है कि शहर से बारिश का सिलसिला इस बार आज शुरू हुआ है। लोग इस सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम का मरकज़ बहीरा अरब में मौजूद है। सिस्टम के फैलाव से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। आइंदा चंद दिनों तक बहीरा अरब में बालाई सतह पर हवाओं की गर्दिश रहेगी। कराची में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला भी आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन, शारा फैसल के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है। आई चंडीगढ़ रोड और बर्न्स रोड, सिंध असम्बली और अतराफ में भी बारिश हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। नेवल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बारिश बताई जा रही है। कुछ जो इलाके हैं उनके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बादल बरस रहे हैं। कराची वाले गो के पिछले हफ्ते से ये कहा जा रहा था कि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, इंतज़ार कर रहे थे और बिल आखिर ये बारिश हो गई। लेकिन अब देखना है कि कितनी हुकूमत इस सिलसिले में मुतहरिक थी, क्या इंतजामात किए गए हैं कि इस बारिश से शहरियों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर ना हो। कुछ नशेबी इलाकों में बताया जा रहा है कि पानी खड़ा हो रहा है जैसे जैसे बारिश बरस रही है। लेकिन अब देखना यह है कि ये बारिश का सिलसिला कितनी देर तक जारी रहता है और क्या इससे लोगों के मामूलात ज़िंदगी में मुतासिर हो रहे हैं या नहीं। किरण खान ने हमें ज्वाइन किया है। किरण, आप किस इलाके में मौजूद हैं और बारिश का अहवाल हमें दीजिए, आंखों देखा हाल बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आए चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हैं और आज ऐसा लग रहा है कि पूरे कराची में एक साथ जो है ये बादल बरस रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि कराची में तकरीबन जो हल्की बारिश जो है होती रही थी मुख्तलिफ इलाकों में, और कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे बारिश हुई नहीं। लेकिन आज चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हों, नॉर्थ कराची हो, नॉर्थ नाजिमाबाद हो, लियाकताबाद हो या दीगर डिस्ट्रिक्ट हो, कोरंगी, लांडी, एयरपोर्ट का एरिया हो, आया चंडीगढ़ रोड हो, हर जगह इस वक्त जो है तेज़ बारिश हो रही है, हवाओं के साथ, तेज़ हवाओं के साथ। महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी उसमें उन्होंने पहले जो इतवार के रोज़ उनकी पेशगोई यही थी कि मंगल और बुध को जो है गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। ताहम कल उन्होंने दोबारा अपनी पेशगोई जो है वो तब्दील की थी और कहा था कि मंगल और बुध को हल्की बारिश का जो है वो इम्कान है। लेकिन आज कराची में बारिश जो उसकी तवक्को पहले की जा रही थी कि इतवार को काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं, वो लग रहा है कि वो प्रेडिक्शन आज सही साबित हुई है कि मंगल के रोज़ अब से तकरीबन आधे पौने घंटे से ये बारिश जो है कराची में हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। जो नशेबी इलाके हैं उनका भी खदशा है कि वहाँ वो भी ज़ेरे आब आ सकते हैं। और इसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से दावे किए गए हैं कि हर जगह मशीनरी लगाई गई है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जो कि पहले से पॉइंट आउट किए जाते हैं कि नशेबी इलाके जो होते हैं जहाँ पे पानी भर सकता है, वहाँ पर हुकूमत के भी काफ़ी दावे किए गए हैं। लेकिन अब जब बारिश रुकेगी उसके बाद सूरत हाल जो है मज़ीद क्लियर होगी कि किन इलाकों में सबसे ज़्यादा मसाइल इस वक्त जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त भी कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी मुतासिर हो रही है। जी किरण, ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात क्या कहता है, आज कितनी देर तक और किस मिकदार में बारिश होगी?
जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है उनके मुताबिक तो आज जो बारिश थी वो गरज चमक के साथ हल्की बारिश होनी थी, लेकिन ये प्रेडिक्शन थोड़ी सी उनकी गलत साबित हो रही है, क्योंकि इस वक्त कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो रही है। और अभी हम भी जहाँ पर मौजूद हैं आया चंडीगढ़ रोड पर, यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है हवाएँ भी चल रही हैं। जी किरण खान हमें बता रही हैं कि आई चंडीगढ़ और अतराफ में भी इस वक्त तेज़ बारिशें हो रही हैं, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। गो कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि मंगल और बुध को जो बारिशों का सिलसिला है वो हल्के से मुतदिल होगा, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है। आइए चंडीगढ़ के मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त ट्रैफिक भी है, बारिश भी हो रही है। अब इंतजामात से मुतल्लिक भी देखना है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे कि इंतजामात उन्होंने किए हैं, इस दफ़ा वो मुतहरिक हैं। सबसे बड़ा बिल्कुल अलीना सवाल यही है कि इंतजामात जो किए गए थे, जो दावे किए गए थे, ख़ासतौर पर नालों की सफाई का जो मामला है, क्योंकि गुज़श्ता बारिशों में हमने देखा है कि दावे किए जाते हैं लेकिन नालों की सफाई नहीं की जाती और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ती है, ख़राब होती है, क्योंकि नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं, फिर आबादी है वहाँ पे, इंक्रोचमेंट है, ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से नशेबी इलाके पानी में डूब जाते हैं, मामूलात ज़िंदगी मुतासर, शदीद मुतासर हो जाता है। और कराची के इलाके जैसे शाहराह फैसल का तो आप देख रहे हैं ना मनाजिर, यहाँ पम्प्स भी लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर और ट्रैफिक भी चलती रहती है, लेकिन कराची सेंट्रल का इलाका अगर आप चले जाएँ, नॉर्थ कराची की तरफ आप चले जाएँ, लालू खेत की तरफ, और ये सारे जितने भी इलाके हैं यहाँ बहुत ज़्यादा सड़कें भी ख़राब हैं और नशेबी इलाके भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी देखा लांडी का इलाका जैसे है। बिल्कुल, और ये भी देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो ट्रैफिक का दबाव बड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस की भी बड़ी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से मुतहरिक होते हैं और मुस्तैद होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। किरण से यही पूछते हैं। किरण, तेज हो गई मूसलाधार बारिश इस वक्त लग रही है। बिल्कुल, जिस तरह किरण भी हमें बता ही रही हैं। किरण, ये बताइएगा ट्रैफिक का निज़ाम, यकीनन जो हमारे नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद हैं उनसे आपकी बात हो ही रही होगी, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है? क्या सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, सड़कों पे ट्रैफिक का दबाव भी है, जबकि पानी क्योंकि खड़ा होना शुरू हो गया है मुख्तलिफ अहम शाहराहों पे, जिसकी वजह से जो रवानी है वो भी ट्रैफिक की मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपने तौर पे तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो रवानी है ट्रैफिक की उसको बेहतर करने किरण हमारे साथ ही रही है। इस वक्त सदर के इलाके की सूरत हाल हमें सुलेमान सादत खान बताएंगे। सुलेमान, कहिएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, जिस तरह से महकमा मौसमियात की पेशगोई थी, बिल्कुल एन उस मुताबिक गुज़िश्ता रोज से बारिशों का सिलसिला जारी था। हल्की फुल्की बारिश रही और फिर रात के बाद सुबह तक बारिश का सिलसिला रुका हुआ था, लेकिन अब दोबारा से मौसलाधार बारिश हो रही है। और मैं सदर के इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और चंद मिनट कबल ये शुरू होने वाली बारिश जो है वो इस कदर तेज़ हो गई है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक गई है। और न सिर्फ ये बल्कि सड़कों पर जो है वो पानी भी जो है वो खड़े होना शुरू हो गया है। और न सिर्फ ये बल्कि शहर के हर ज़िले में और मुज़फ्फराबाद समेत तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। और बारिशों के बाद सूरत हाल ये है कि जो बरसाती नाले हैं वो भी उबल पड़े हैं और KMC, DMC, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिस तरह से उन्हें बरसाती नालों को साफ करना था, तो 38 बड़े नाले और 518 छोटे नालों की सफाई ना होने के बाद गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि सुरजानी, जिला बस्ती और उसके अतराफ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाले उबल पड़ने से लोगों को जो है काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। जिस तरह से बारिश हो रही है, अगर ये मुसलसल रहती है तो सूरत हाल इंतजामिया के कंट्रोल से जो है बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत खान। और जिस तरह के हम बता भी रहे हैं, बारिश बरसती है, चीज़ें धुल जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, लोग भी, उनके मूड भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ कीचड़ भी हो जाता है जब बारिश रुकती है और तेज़ होती रहती है बारिश तो जहमत बनती जाती है। बिल्कुल। राना जावेद हमारे नुमाइंदे से कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, राना का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। जी राना जावेद। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी और हफ्स के बाद बिलाखिर कराची में जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। कल भी बारिश हुई कराची में और फिर कुछ अरसे के लिए रुक गई थी, तो आज एक बार फिर दोबारा तेज़ बारिश का सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में, सिंध असम्बली के अहाते में, जहाँ इस वक्त देख रहे हैं कि तेज़ बारिश जो है वो हो रही है और बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। इस वक्त आपको दिखाएंगे कराची के सिंध असम्बली के अहाते में ये तेज़ बारिश हो रही है और जो सब्ज़ा है सिंध असम्बली का वो निखर
कर बहुत प्यारा मंजर पेश कर रहा है, सब्जा है और सामने रोड पर आपको जो है वो पानी जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये सूरत हाल है। ये तो थी अब तक की मौसम की बात कि मौसम अच्छा है, लोग इंजॉय करेंगे। शहरी इंतजामिया ने और दीगर इदारों ने कोई इक़दाम किए हैं या नहीं तो वो एक अलग कहानी है। अगर किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो ये जो बारिश है जो कि बारान रहमत है ये कराची वालों के लिए ज़हमत बन जाएगी। जी राना जावेद हमें अहवाल दे रहे थे और जहाँ जो मनाजिर हम देख रहे थे तो ये मनाजिर देखते हुए तो अभी ज़हमत नहीं लग रही है, ये बड़े खूबसूरत मनाजिर है। लेकिन शाहराह फैसल का अहवाल लेते हैं। उनीबा ज़मीर शाह ने हमें ज्वाइन किया। अब ये हम मनाजिर भी देख रहे हैं शाहराह फैसल के, थोड़ा सा पैनिक इस वक्त देखने में आ रहा है। उनीबा कहिएगा, बारिश तेज़ हो रही है, कब से हो रही है बारिश और क्या मनाजिर देख रही हैं? आप देख रहे हैं कि बारिश की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और हम इस वक्त शाहराह फैसल पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप सड़कों पर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस शिद्दत की बारिश हुई है और कितनी तेज़ी के साथ बारिश गिर रही है इस वक्त। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात तक वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त जो मैं इंटेंसिटी देख रही हूँ वो थोड़ी ज़्यादा है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ माहिरीन मौसमियात जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि मुतदिल बारिश होगी या फिर हल्की बारिश होगी, लेकिन शाहराह फैसल पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। बहर अरब से मानसून सिस्टम बदस्तूर सिंध में दाखिल हो रहा है और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई की गई है और कराची में भी कहा गया है कि आइंदा चंद रोज़ तक कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। दिन के औकात में मौसम मरतूब रहेगा लेकिन शाम या रात में बारिश हो सकती है। पुल के नीचे आप देखेंगे कि बाइक राइडर्स मौजूद है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो बाइक राइडर्स को होती है क्योंकि इस दौरान रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं और ऑब्वियसली बात है उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो रुक जाते हैं। इस तरह कोई भी ब्रिज नज़र आते हैं। सड़कों पे पानी जमा हो चुका है लेकिन चूँकि अभी तो बारिश हो रही है तो पानी जमा होना ऑब्वियस है और कुछ देर के बाद देखा जाएगा, चंद घंटों के बाद जब बारिश रुकेगी तो पानी कितना यहाँ से निकल पाएगा। उनीबा ज़मीर शाह हमें शाहराह फैसल की सूरत हाल मंजर कशी भी कर रही थी और मनाजिर भी दिखा रही थी और बता रही थी कि मोतदिल से हल्की बारिश की आज पेश गोई की गई थी। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है और ट्रैफिक की रवानी में भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग होते हैं, बसेस वगैरह में सवार, वो अंडर पासेस के नीचे जमा हो जाते हैं, बाइक्स वाले अंडर पासेस के नीचे आ जाते हैं तो थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार हो जाती है ट्रैफिक। बिल्कुल, किरण खान की जानिब बढ़ते हैं। किरण, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद है, क्या मनाजिर आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम आया चंडीगढ़ रोड पर ही मौजूद हैं और जहाँ पे अगर हम पानी खड़ा होने की बात करें, जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, उसके साथ साथ एक चीज़ जो है वो कराची में मुख्तलिफ सड़कों पे आपको मिलेगी कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि अगर उस पर पानी खड़ा हो जाता है बारिश का तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि नहीं पता होता आपको जब आप आगे जा रहे होते हैं कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे गटर खुला हुआ है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कराची में तकरीबन 41 बड़े नाले हैं और तकरीबन 515 जो हैं वो इलाकाई नाले हैं जिनकी सफाई की दावे ज़रूर किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सुरजानी में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी 23 मिलीमीटर कहा जा रहा था, जबकि 23 मिलीमीटर नॉर्मल से भी कम बारिश होती है। लेकिन सुरजानी का हमने हाल देखा था कि उसका जो नाला था वो मुकम्मल तौर पर ओवरफ्लो हो गया था। 4K चौरंगी, करीमी चौरंगी बिल्कुल डूब चुके थे। जो गाड़ियाँ थीं वो दूसरी रोड इस्तेमाल कर रही थी और वो रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हो गया था। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है, वक्फे से जारी है। ताहम जो इंतज़ामिया के दावे थे वो हमें जो है वो इसी पानी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर सड़कों पे पानी खड़ा होना शुरू हो गया है, जबकि नशेबी इलाके जो हैं कराची के और जो मुज़फ़्फ़ाती इलाके हैं उनमें भी मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो गए। आपके साथ ही हम देख भी सकते हैं कि आइए चंडीगढ़ रोड भी है, ट्रैफिक थोड़ी सुस्तरवी का शिकार है। यहाँ की जरा मंजर कशी कीजिएगा क्योंकि अब से 1-1.5 घंटे में छुट्टी भी होने वाली है तो उसके बाद दबाव और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अभी अगर हम देखें तो एक तरफ तो हमें ट्रैफिक कम नज़र आ रही है कि लोग जो हैं वो हल्के हल्के जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके जैसे ये ट्रैफिक मूव करती है टावर की तरफ तो वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया है कि यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि गाड़ियाँ जो हैं वो रुकना शुरू हो गई और एक लंबी कतार जो है वो नज़र आ रही है इस वक्त आए चंडीगढ़ रोड
उस जगह पर जहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो टावर की तरफ मूव करती हैं। जो इस एक तरफ साइड पर रोड के पानी खड़ा होना शुरू हो गया है और एक बार फिर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी और हम देख रहे हैं कि दोबारा से बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो गया। अगर यही पूरे दिन बारिश का सिलसिला रहा तो फिर लोगों के लिए बहुत परेशानी जो है हो जाएगी अगर हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर परेशानी का सबब बनेगी ये बारिश। अब लग ऐसा रहा है। किरण खान बहुत शुक्रिया, आपसे वक्तन फ़वक्तन अहवाल लेते रहेंगे। और लीना छुट्टी तो होने वाली है लेकिन गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। लेकिन देखना ये है कि ये गर्मी की छुट्टी तो, लेकिन ये परेशानी को दावत ना दे ये जो छुट्टी है, क्योंकि जब बारिश रुकती है तो फिर सही इम्तिहान होते हैं और पता चलता है कि कितने इंतजामात किए थे और क्या। अब देखते हैं बारिश रुकती कब है और क्या चलती रहती है। महकमा मौसमियात का बिल्कुल ये कहता है कि बहिरा अरब से मानसून का सिलसिला बदस्तूर सिंध में दाखिल हो रहा है। मानसून हवाओं के जेर असर कराची, दादू, जामशोरों में 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा और महकमा मौसमियात का यह भी बताना है कि हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, खंबर, शहदाद कोट भी 7 जुलाई तक यहां भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और सिविक सेंटर की सूरत हाल क्या है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है। सरवर रज़ा वहाँ मौजूद हैं और वो हमें सिविक सेंटर का अहवाल देंगे, क्योंकि ये वो इलाके हैं अलीना कि यहाँ से आगे आप लालू खेत की तरफ जा रहे हैं या फिर आप गुलशन की तरफ जा, बड़ा एक ये बिजी। जानते हैं सरवर रज़ा से वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी सरवर। जी, कराची की शहरी मानसून की बारिशों का काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे। लगता ये है कि आज उनके इंतजार के लम्हात जो है वो ख़त्म हो गए और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कभी तेज़ कभी हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सिविक सेंटर से और यहाँ भी कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश हो रही है, जिससे शहरियों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। इसके साथ साथ अगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल से आपको अपडेट करूँ तो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें साइट एरिया, नॉर्थ नाजाबाद, औरंगी टाउन, शारा फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, सदर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ कभी तेज़ कभी हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शदीद गर्मी थी जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना था। गो के अब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है जिससे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया और शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। सरवर रज़ा सिविक सेंटर से हमें अहवाल दे रहे थे। बारिश से मुताल्लिक़, मौसम से मुताल्लिक़ आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली न दी जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल भी दिए जाएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज किया है और कहा कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वजीर आला का फॉर्मूला सियासी फवाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा था कि वजीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली न दी जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज किया है और कहा है कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए है। फवाद चौधरी ने इस्तदा में कहा है कि ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा था कि वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली ना दी जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल्स भी दिए जाएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने अब सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और ख़त में कहा है कि पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज करते हैं, क्योंकि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फ़वाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा था कि वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद भी इस्तदा की है कि हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है और इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली न दी जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल भी दिए जाएंगे।